कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री फर्स्ट हेडिंग लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. Principle of your calorimetry. So what is the principle of a calorimetry, beta? Heat lost by a body, heat lost must be equal to heat gained. Heat lost by a body must be equal to heat gained. In surrounding, if there is no exchange of heat, beta, then only this condition is happening. यानी जितनी भी कोई बॉडी अपनी हीट लूज कर रही है, that must be the equal to heat gained by the surrounding, provided in surrounding if there is no exchange of heat, no exchange of your heat. ठीक है. So what is the principle of a calorimetry, beta? Heat lost by your hot body must be equal to heat gained by the cold body. Who will lose the heat? Basically hot body, obviously, and heat is gained by your cold body, and it is based upon your conservation of your heat energy, beta, and it is based on conservation of heat energy. That is based upon your conservation of your heat energy. What do you mean by conservation of heat energy? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one point to another point. So heat lost by hot body must be equal to your heat gained by your cold body. Now you already know the heat formula, beta, everyone. What is the heat formula, beta? देखो जल्दी से. If delta Q is equals to m into s into delta T. अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद if you are getting positive, that means what? Temperature has increased. Temperature has increased. Capital T मतलब क्या? Temperature. If Q is a positive, then temperature is been increased. The same way, if delta Q is equals to m into s into delta T, and if we are getting negative, that means if the Q value we are getting negative, that means the temperature has decreased. The temperature has decreased. If you are getting the Q value positive, temperature increases. If the Q value if you are getting negative, that means the temperature is been increased. That means delta Q value can be written as delta Q is equals to your m into your s into your temperature of your higher body minus temperature of your lower body. So this is the basic equation again to calculate the calorimetry problems. Delta Q is equals to m into s into temperature of your higher point minus temperature of your lower point part affiliation. Is that clear for everyone? What is the principle of calorimetry, beta? Heat lost by the hot body must be equal to your heat gained by your cold body. And it is based upon what, beta? It is based upon your law of conservation of your heat energy. If delta Q value is positive, that means temperature increases. If delta Q value is negative, that means the temperature value is decreasing. Clear है सभी को? Yes, sir. चलो एक प्रॉब्लम देख लो जल्दी से यहाँ पर. Everyone write the question. Find the final temperature. Find the final temperature when 10 gram of water at 70 degrees centigrade and 20 gram of water at 40 degrees centigrade are mixed. Okay, so this is a question. Read the question, everyone. Find the final temperature when 10 gram of water at 70 degrees centigrade and 20 gram of water at 40 degrees centigrade are mixed. Isn't it? क्या क्या mix हो रहा है देखो जल्दी से. 10 gram of water. 10 gram of what water? 10 gram of your water at what temperature? 70 degrees centigrade is mixed with 20 gram of water at 40 degrees centigrade. ठीक है ना. अब इसमें बताओ कौन लूज कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है.
So heat is lost by what? Who is losing heat, beta? 70 degrees 70, Celsius because the higher water. temperature mein na beta. This at higher temperature, this is a lower temperature. So heat is lost by what? 10 grams of water must be equal to heat gained by what? 20 grams of water. ये clear है सभी को? Is that point clear? चलो, Yes, sir. हीट का फॉर्मूला क्या है? ms into डेल्टा टी. मास कितना है? 10. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1. ठीक है. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 70 से कम टेम्परेचर पे आ रहा है. 70 माइनस सम कॉमन टेम्परेचर टी, that is equals to heat is gained by what? 20 into specific heat of your water is how much? 1. तो ये टेम्परेचर कहां पर है? T माइनस ऑफ योर 40. क्योंकि ये 40 टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा ना. ये जब मिला रहे हो तो ये मिलने के बाद 40 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. 40 से कई टेम्परेचर टी के पास आ गया, यानी ये 40 से तो ये ज्यादा रहेगा ना बेटा. ठीक है ना. तो 40 70 माइनस ऑफ योर टी यहां पर लिखोगे. यहां पर 40 का जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा, बिकॉज 20 ग्राम ऑफ वाटर इज गेनिंग एनर्जी, यानी ये हीट अप हो रहा है. यानी 50 से 40 से 41 जा सकता है, 42 जा सकता है, 43 जा सकता है. तो वो जो जहां कहां पर जा रहा है? टी के पास जा रहा है. यानी टी इज ग्रेटर देन 40 एंड टी इज लेसर देन 70. इसलिए 70 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस ऑफ योर 40. क्लियर है सभी को? तो ये चलेगा यहाँ पर. तो ये बन गया मेरे पास 70 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू हो गया 2t माइनस ऑफ 2 इंटू 4, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 80. तो ये माइनस और ये इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा. सो दिस इज 70 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 2t प्लस ऑफ योर t. तो कितना है बेटा? 7 7 14 150. सो दिस इज 150 इज इक्वल्स टू योर 3t, यानी t इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? 150 डिवाइडेड बाय 3. तो कितना बना? 3 5 15. सो 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द कॉमन टेम्परेचर, यानी दिस बॉडी लूज करके 50 पे आएगा और ये बॉडी 40 से होते हुए 50 को जाएगा. सो कॉमन टेम्परेचर इन लोगों का कितना बन गया मेरे पास? 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आ गया सभी कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? Find the final temperature when 10 gram of water at over 70 degrees centigrade and 20 gram of water at 40 degrees centigrade are mixed. So 10 gram of water at 70 degrees centigrade will lose and 20 gram of water at 40 degrees will gain. तो लूज करके एक टेम्परेचर टी पे आ रहा है, ये 40 भी गेन करके एक टेम्परेचर पे जा रहा है. तो दोनों का कॉमन टेम्परेचर क्या ले रहा हूं मैं? टी. तो 7 ये कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूं मैं? एम एस इंटू योर डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू योर एम एस इंटू डेल्टा टी. ये हो गया कोल्ड बॉडी के लिए और ये हो गया हॉट बॉडी के लिए. ठीक है ना. सो दैट इज द रीजन मास इसका है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 into 70 minus t, that is equal to 20. Specific heat of water is 1 into t minus 40. So simplify कर लो, that will be giving me this answer. Clear है? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू याद है कि भूल गए? एक बार लिखा दो. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या बताया था? देखो जल्दी से. S is equals to 1 calorie per gram degree centigrade. That is also equal to 4200 joule per kg degree centigrade. That is equals to 4200 joule per your kg Kelvin. Okay, so it doesn't make any difference. It doesn't make any difference if we write in degree centigrade or Kelvin. क्यों? दोनों के नंबर ऑफ डिविजन्स आर सेम. इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. आ गया प्रॉब्लम करना सभी को? चलो और एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से. Yes. 30 gram of water at 42 degrees centigrade is mixed मतलब plus, is mixed with 10 gram of water at 74 degrees centigrade. Then final temperature is how much? Final temperature
T final is equals to your how much? चलो जल्दी से करके बताओ. बोलना आंसर. Who is losing and who is gaining? 74 is losing and 42 is gaining. Very good. That means heat is lost by 10 grams, and that is equals to heat is gained by whom beta? 30 grams. ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? तो ये हो गया मेरे पास 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इनटू इसका टेम्परेचर कितना आएगा 74 माइनस ऑफ टी, दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया 30, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इनटू ये कहां से कहां तक आ रहा है, दिस वन इज नथिंग बट टी माइनस ऑफ 42. ठीक है ना? तो ये चले गया और ये चले गया, फिर यहां से 74 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3t माइनस 3 इंटू 42 कितना आ रहा है बेटा? 3 इंटू 42 कितना आ रहा? 126. 126 माइनस 126 को इधर ले लो, 74 प्लस 126 इज इक्वल्स टू दिस वन इज 3t प्लस ये कितना बन जाएगा 4, बराबर है. 74 प्लस 126 कितना बन रहा? 200. ये हो गया 200, ये हो गया कितना बेटा? ये कितना है? टी है ना बेटा? T है ये टी है, तो ये कितना बन 40. जाएगा यहाँ पर 4t. तो t बना कितना? 200 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, यानी ये भी कितना बन रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. आया सभी को? Yes sir. ना आया सर. कर लिया? हो गया ऑलरेडी मटेरियल कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम पूरे? यस सर, कर लिया. कितने मटेरियल हो गए पूरा? डाउट से. यस सर, डाउट से सर. फिर शेयर करना ना ग्रुप में. नहीं सर, आप कॉलेज को आते तो पूछने के लिए रख दिया था. फुल टाइट है बेटा, जल्दी से आप लोग अपने अपने डाउट्स ग्रुप में डाल दिया करो. आई विल हेल्प यू आउट इन दैट वन. या इफ आई फाइंड दैट क्वेश्चंस टू बी गुड आई कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड फॉर एवरीवन. ओके जितने भी सर. क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके डाउट्स डाल दो, और जो असाइनमेंट मैंने भेजा वो भी कर दो एक बार. चलो एक क्वेश्चन ले लो जल्दी से, ये करो सभी लोग. देयर आर 3 liquids of same mass. There are 3 liquids of your same mass A, B, C at 10 degrees centigrade, 20 degrees centigrade and 30 degrees centigrade. ठीक है? When A and B are mixed, when A and B are mixed, the temperature is 12 degrees centigrade. When B and C are mixed, when B and C are mixed, the temperature is 28 degrees centigrade. First stop. Find the final temperature. Find the final temperature when A and C are mixed. When A and C are mixed. अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार नीट में ऐसे वाले मॉडल्स पूछ चुका है बेसिकली, जब सीबीएसई पीएमटी वगैरह एग्जाम होते थे. सो अच्छी तरह से समझो, अगर एक क्वेश्चन समझ में आया ना, ऐसे वाले कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. देयर आर 3 liquids. This is a liquid A, this is your liquid B, and this is your liquid C. Okay, they are at what temperatures beta? So they are at a temperatures of your ये कितने टेम्परेचर पे जल्दी से बताओ. ये कितने टेम्परेचर पे है, B कितने टेम्परेचर पे और C कितने टेम्परेचर पे. So A is at your 10 degree centigrade, B is at your 20 degree centigrade और C है at your 30 degree centigrade. उसके बाद उसने क्या बोला, देखो A and B को मिक्स कर दिया. So we are mixing right now A and B. तो जब A और B को हम लोग ने मिक्स किया, when A and B are mixed, the temperature जब कितना है इसका 12 degree centigrade. क्लियर है?
उसके बाद व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, व्हेन बी एंड सी को आपने मिक्स किया तो इसका टेम्परेचर कितना आ रहा बेटा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद क्या बोला, देन द टेम्परेचर इज 28, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स। बाद में क्या बोल रहा, तो ए और सी को मिक्स कर रहा हूं, सो व्हेन यू आर मिक्सिंग ए एंड सी तो इसका टेम्परेचर कितना आएगा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes, sir. समझो फिर से एक बार, अपने पास 3 लिक्विड्स है ए बी एंड सी, जिसके मासेस सेम है। इसका भी मास कितना है मेरे पास यम है, इसका भी मास कितना है मेरे पास यम, एंड इसका भी मास मेरे पास कितना है यम। ठीक है, ए एंड बी के, ए का टेम्परेचर है 10, बी का टेम्परेचर है 20 और सी का टेम्परेचर है 30। ए और बी को जब मिक्स करे तो कौन हाइयर है कौन लोअर है बेटा, बी इज एट हाइयर टेम्परेचर, सी इज एट योर लोअर टेम्परेचर, so heat is lost by B and heat is gained by your A, so they are getting a common temperature is how much, 12. Okay, then when B and C are mixed, then this is at higher temperature, this is at lower temperature, so there is a flow of heat from C to B, then their common temperature उसका कितना है 28। तो पहले इसको कर लेते हैं, A and B को मिक्स करते हैं। फर्स्ट A and B मिक्सचर, A and B का मिक्सचर ले लेते हैं। तो मास ऑफ योर A, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर A into delta T1 is equals to mass of your B, specific heat of your B into your delta T2। दोनों के थे मासेस सेम है, तो ये मास सेम है तो मास m हो गया, ये स्पेसिफिक हीट ये हो गया, एंड टेम्परेचर ये के पास से जा रहा है कि कौन ज्यादा है। देखो ए एंड बी को जब मिक्स कर रहे हैं तो बी के पास ज्यादा है, ए के पास कम है, ठीक है ना। तो B is having more temperature, specific heat of your A part affiliation, तो हाइयर टेम्परेचर कितना आ गया यहाँ पर 12, कॉमन टेम्परेचर 12 माइनस ऑफ योर 10 that is equals to your M, specific heat of your B, और this one is 20 minus of your 12, दोनों के मासेस सेम है, तो 12 minus of your 10 this is your A, 12 minus of your 10 कितना हो गया 2 times of your A, that is equals to your SB, 20 minus of 12 कितना आ गया 8, so it is your into 8, so this one is 2 ones and this one is your 2 fours, यानी specific heat of your A is equals to 4 times of your specific heat of your B। आया यहां तक सभी को? ये फर्स्ट स्टेप आ गया सभी को। जब A एंड B को मिक्स किया, जब A एंड B को मिक्स किया तो यहाँ पर 12 minus 10 क्यों कर दिया, देखो जल्दी से बताओ, क्योंकि दिस इज गेनिंग एंड दिस इज लूजिंग, तो 20 minus 12 दिस इज गेनिंग, तो गेन के गन करने में 12 आया, सी दैट इज द रीजन 12 minus 10। ठीक है, Yes, sir. क्या है समझ में? आया सर। पक्का? Yes, sir. देखो अब नेक्स्ट वाला मिलाओ जल्दी से। सेकंड में क्या कर रहे हैं, B and C are mixed, 4:1 आता सर। B and C are B and C, B and C are mixed, कितना आ रहा बेटा? B and C are mixed, यानी specific heat of B into delta 3 must be equal to specific heat of C into your delta 4, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 and 2 ले लिया ना, इसलिए मैं 3 and 4 ले। स्पेसिफिक हीट ऑफ योर B into, अब देखो B and C मिक्स कर रहे हैं तो कौन लूज करेगा, 30 लूज करेगा, तो 30 minus 28, ये गेन करेगा तो 28 minus 20, तो ये हो गया SB will be right now how much for me, 28 minus of 20 is equals to specific heat of your S into ये हो गया 30 minus of your 28, तो 28 minus 20 कितना 8 times of your SB, that is equals to 30 minus 28 कितना 2 times of your SC, ये हो गया 2 ones, ये हो गया 2 fours, यानी ये हो गया 4 times of your specific heat of your B is equals to specific heat of your C, तो ये हो गया और एक इक्वेशन। तो ये मान के चलो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, और पहले वाला जो आया दिस आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या पूछ रहा है देखो लास्ट में, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन A and C are mix, जब A और C को मिक्स कर रहे हैं, सो दिस इज एट हायर टेम्परेचर, दिस इज एट लोअर टेम्परेचर, सो ऑब्वियसली C will lose and A will gain। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फ्रॉम 1 and 2, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ रहा देखो, यस ये विल बी इक्वल टू योर SC, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये 4 times of your SB, SC is equal to how much आया 4 times of your SB,
यानी 4 times of your SB can be taken as of your SCA. So SCA will specific heat of your A is equals to specific heat of your C, isn't it? Now A and C are mixed. Now A and C are mixed. When A and C are mixed, mass of your A, specific heat of your A into temperature of that one is how much for me? 1. That is equals to mass of C, specific heat of C into temperature of this one, मान के चलो 2. Isn't it? दोनों का मास सेम है तो दोनों को निकाल दो, ये 2 चलेगा, ये भी चलेगा. Specific heat of A is equals to specific heat of C, so this one is also getting cancelled. So it is this one right now. So this is a T minus of your 10 is equals to 30 minus of your T. ठीक है ना? तो माइनस टी इधर आ गया तो 2t हो गया, -10 इधर गया तो 30 माइनस कितना हो जाएगा, -10 इधर गया तो 10, तो ये हो गया मेरे पास 40. तो t इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टेम्परेचर कितना बना 20 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है सभी को? देखो A एंड C मिक्स करे जब A इज एट लोअर टेम्परेचर and B is at your C is at a higher temperature, so that is the reason this is 30 minus T and this one is T minus 10. Clear है सभी को? सर एक बार आया? एक्सप्लेन करिए. फिर से एक बार बोलो. जी सर. There are 3 liquids of same masses beta, A, B and C. At what temperature? 10 degree centigrade. ये हो गया 20 और ये हो गया 30. पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, A एंड B को मिक्स किया, उसके बाद जब मिक्स किया तो उनका कॉमन टेम्परेचर आया 12. B एंड C को मिक्स किया तो उन लोगों का कॉमन टेम्परेचर आया 20. अब उसने बोल रहा है कि अगर फाइनली A एंड C को मिलाया जाए तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर. See, I have written everything right now in the detail. A, B and C. A and B are having same masses m. So A का टेम्परेचर 10, B का टेम्परेचर 20, C का टेम्परेचर 30. A and B मिक्स कर रहे हो. So B is at higher temperature, so 20 minus 12, and this one is at lower temperature, so 12 minus 10. So mass of your both of them are same हो गया. तो first A and B को मैंने मिक्स कर दिया. Mass of A, specific heat of A into temperature T1 is equal to mass of B, specific heat of B into delta T. दोनों का मास सेम है, निकाल दो. Specific heat will be different because liquids are different. So SCA इसका टेम्परेचर 12 minus 20 और इसका 20 minus 12. ये टेम्परेचर आया ना, कैसे लिखा मैंने 12 minus 10 और 20 minus 12. Yes, sir. तो इनको सिंप्लीफाई कर लो. स्पेसिफिक हीट ऑफ A is equals to 4 times of specific heat of B. अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड में क्या कर रहे हैं, B and C are mixed. अब मैं क्या कर रहा हूँ, B and C को मिक्स कर रहा हूँ. जब B and मिक्स कर रहा हूँ तो C is at higher temperature, B is at lower temperature, यानी 30 minus 28 and 28 minus 20. क्योंकि this one is higher ना compared to this one, तो C will lose and B will gain. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ दोनों का मास सेम था, दोनों का मास निकाल दिया मैंने. स्पेसिफिक हीट ऑफ B टेम्परेचर ऑफ D3, स्पेसिफिक हीट ऑफ C टेम्परेचर ऑफ 4. स्पेसिफिक हीट ऑफ B इसका टेम्परेचर कितना हो गया 20 minus 20, C का कितना हो जाएगा 30 minus 28. सो सिंप्लीफाई करो, वी विल बी गेटिंग दिस वन एज 4 times of your SB is equals to SC. फ्रॉम 192 को इक्वेट करो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ A is equals to स्पेसिफिक हीट ऑफ C आ गया. इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा. क्वेश्चन देखने के लंबा है लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे. अगर A एंड B को मिक्स किया तो क्या स्पेसिफिक हीट रिलेशन होगी, वैसा वगैरह क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली. अब फाइनली A एंड C को मैंने मिक्स कर दिया. A का मास है Ma, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर A, टेम्परेचर इज डेल्टा T1. C को मिक्स किया, मास ऑफ C, स्पेसिफिक हीट ऑफ C इनटू डेल्टा T2. दोनों के मासेस सेम है तो मासेस को निकाल दो. स्पेसिफिक हीट ऑफ A एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ B सेम है, यहाँ पर देखो दोनों सेम है तो उसको भी निकाल दिया. तो अब यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है. सो A का टेम्परेचर कितना है मेरे पास, A का टेम्परेचर कितना है 10, B का टेम्परेचर कितना है 30, तो ये 30 minus 10 और T minus 10, तो वही लिखा मैंने यहाँ पर. तो T minus 10 is equal to 30 minus 10. A minus 10 इधर गया तो प्लस, A minus T इधर आ गया तो प्लस, 2T is equals to 40, so T is equals to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आया सभी को? Yes sir. पक्का? Yes sir. So this is the way how we get the questions on your कैलोरीमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस है जो अपने को कंपलसरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से. थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन भी है, सो इट विल बी हेल्प यू आउट डूइंग लॉट नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस. मेरे पास एक कैलोरीमीटर है, दिस वन इज योर कैलोरीमीटर. ये कैलोरीमीटर है, ये क्या है, कैलोरीमीटर. ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है. दिस वन इज वाटर.
दिस वन इज वाटर। कितना वाटर है? मान के चलो 160 ग्राम ऑफ वाटर है मेरे पास। ओके, 160 ग्राम ऑफ योर वाटर है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोग को तो मालूम है कितना होगा बेटा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ये कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। मास ऑफ कैलोरीमीटर दे रखा है 400 ग्राम्स और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो ये कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर जो है ना 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक देखो सभी लोग एक बार, ये कैलोरीमीटर है, एवरीवन लिसन इट केयरफुली। एक कैलोरीमीटर है, उसमें पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है? 160 ग्राम ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो अपने को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ, कैलोरीमीटर इज made of copper, is made up of your copper. Copper is a conductor. तो कॉपर का मास दे रखा है कितना, ये कैलोरीमीटर का पूरा मास दे रखा है 400 ग्राम का हुआ है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अ डाटा गिवन। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, यहां तक sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. सुनाई नहीं दे रहा मेरी किसी की भी वॉइस? Yes, sir. Clear है sir. तो अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग फ्रॉम हियर। ऐसा मैंने यहां पर से ऐड कर रहा हूं कितना, 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हो गया। अब बताओ, अब बताओ, अब क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से। 160 ग्राम ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे है? 45 है कि नहीं? और आप आपने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ वाटर उसको Yes, ऐड sir. कर दिया। 50 ग्राम ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे? 70 है। तो हु विल लूज एंड हु विल गेन? क्वेश्चन इज फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, Water will lose. find the final temperature of mixture। क्या बेटा? who will lose and who will gain? Water lose करता सर और इन्हें gain करता सर। दोनों भी वाटर ही है बेटा, दोनों भी वाटर ही है। 50 ग्राम वाटर लूज करता है। हाँ, that's correct। So heat is lost by whom? 50 grams of water, 50 grams of your water, and that will be equal to what? Heat gained by, this one is your heat gained by, कौन कौन हीट गेन करेंगे बेटा? एक तो कैलोरीमीटर भी गेन करेगा और Copper वाटर and भी water. गेन करेगा। हीट इज गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर at 160 water, 160 gram of water plus 160 gram of water। ठीक है ना। सो हीट इज गेन बाय whom? कैलोरीमीटर प्लस, देखो 50 ग्राम ऑफ वाटर मैंने इस कैलोरीमीटर में डाला तो ये वाटर का टेम्परेचर नो डाउट बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ने के वजह से ये कैलोरीमीटर भी कितने टेम्परेचर पे था? 45 पे था। तो इसका भी टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बच्चे बहुत बड़ा टाइम लगा देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये लॉजिक समझ में आ गया तो आराम से हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज इन लाइक, अगर जनरल क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए ना तो आपके लिए लाइक 4-5 लाइंस होता है, जिससे क्वेश्चन देखने के साथ ही डर हो जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने आप लोग एक डायग्राम के हिसाब से बताने की कोशिश कर दिया। पूरा डाटा आई हैव गिवन इन द डाटा, इन द डायग्राम। तो क्या है मेरे पास, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर है जिसका मास है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दे रखा है 0.1, इसमें से पानी भरा हुआ है, देयर इज अ वाटर इन दैट वन, 160 ग्राम ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर और 160 ग्राम ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वी आर मिक्सिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 70, so obviously 70 ग्राम ऑफ वाटर will lose
So heat is lost by 50 gram and heat is gained by calorimeter plus 160 gram of water. यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर। चलो अब क्या करना है बताओ जल्दी से। इसका मास कितना है 50, स्पेसिफिक हीट कितना है 1 इंटू टेम्परेचर लूज कर रहा है तो 70 माइनस हम कॉमन टेम्परेचर को आएगा ना, ये दोनों भी बढ़ के कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। कैलोरीमेट्री 45 से होके एक टेम्परेचर पे आएगा, वाटर भी क्या हो जाएगा, वाटर भी कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा, दोनों मिलके कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है 400 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ इसका कितना है 0.1 और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा T माइनस ऑफ 45 क्योंकि हाइयर टेम्परेचर हो गया ना बेटा ये तो, प्लस उसके साथ 160 ग्राम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू टेम्परेचर ऑफ दिस वन इज T माइनस ऑफ 45। ये लाइन सभी को समझ में आए या नहीं आए बेटो? आई विल हेल्प यू आउट, अदरवाइज मुंह खोल के पूछना बेटा कंपलसरी। समझ में आया? यस सर। यस सर। कैलोरीमेट्री के लिए मास इंटू स्पेसिफिक Yes, sir, हीट ऑफ समझ में कैलोरीमीटर आया। इंटू टेम्परेचर बेटा। कैलोरीमेट्री के लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ कैलोरीमेट्री है ये, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री है ये, और टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमेट्री है। इनिशियल टेम्परेचर 45 था, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है T, तो इसलिए मैंने T माइनस 45 लिख दिया। उसके बाद 160 ग्राम प्लस 160 ग्राम ऑफ वाटर है तो 160, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो अब टेम्परेचर कितना था इनिशियली 45, तो अब कितना गया T, तो T माइनस 45 आ गया सभी को, आ गया सभी को? यस सर। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग? सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं? जी सर। जल्दी करके बताओ कितना आ रहा? कर सकते सर। ये कितना था यहाँ पर 50 इंटू 1 इज नथिंग बट 50, ये हो गया 70 माइनस ऑफ T, तो ये हो गया 400। तो 0.1 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 1/10 लिख देता हूँ इंटू T माइनस ऑफ 45 प्लस ये हो गया 160 इंटू T माइनस ऑफ 45, ठीक है ना। तो 0.5 में तो ये चले गया, ये चले गया, तो ये हो गया 50 इंटू योर 70 माइनस ऑफ T, दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 45 और 80 माइनस 45, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया 40 इंटू योर T माइनस ये हो गया 40 इंटू योर 45 प्लस ये हो गया 160 इंटू T माइनस 160 इंटू 45, करोगे? कितना आ रहा बेटा? फिफ्टी डिग्री। वेरी गुड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आया किसी को और? ये कितना बनेगा बेटा 50 इंटू 70 कितना है 5 7 35, यानी ये हो गया 3500 माइनस ये हो गया 50T, पूरे T से एक जगह ले लो, इट इज इक्वल्स टू 40T माइनस पार्ट एफिलिएशन हो गया, एक वाला कितना है बेटा राइट नाउ फॉर मी, ये हो गया 40 इंटू 45, कितना है बेटा 40 इंटू 45, 40 इंटू 45 कितना है 1800 प्लस ये हो गया 160 इंटू T माइनस ऑफ यूर, ये कितना है बेटा 160 है, 7200। कितना बेटा 160 इंटू 45, 7200। ओके 7200। तो पूरे T से एक जगह आ गए तो कितना हो गया देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा बताओ जल्दी से। ये माइनस है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पूरा कितना हो रहा देखो 3500 1800 प्लस 7200 इज इक्वल्स टू ये हो गया 40T प्लस ये हो गया 160T प्लस ये हो गया 50, ठीक है ना, क्लियर है?
जल्दी से कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है, देखो बताओ। फिफ्टी डिग्री सेल्सियस आ रहा है सर। आया सभी को? यस सर। कितने जनों का आया? सर ये पूरा कितना आ रहा है बेटा? ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा? 12,500। ओके, दिस वन इज 12,500। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 250 टी। 250 टी। तो हो गई बात, ये चले गया और ये चले गया। सो टी इज इक्वल्स टू 125 0 डिवाइडेड बाई 25। तो कितना आ रहा है बेटा? 50 ऑब्वियसली। क्लियर है? Yes, आ गया sir. बेटा? Yes, sir. ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना अभी? यस सर। और एक क्वेश्चन दो, आपको लोग करोगे? यस सर। आप लोग ही करना है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जा रहा हूं। मान के चलो सेम सिचुएशन, मेरे पास एक कैलोरी मीटर है, ये है मेरे पास कैलोरी मीटर, और इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, और ये पानी का और एक कैलोरी मीटर का टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, और ये कितना है? 240 ग्राम्स ऑफ वाटर है। कितना है? 240 ग्राम्स ऑफ वाटर है। और ये किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। सो मास ऑफ द कॉपर इज 600 ग्राम्स दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इसके अंदर हम लोग ने क्या किया? वी आर एडिंग ए वाटर ऑफ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर मैंने ऐड किया एट योर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। find फाइनल टेम्परेचर। करो जल्दी से, फाइंड फाइनल टेम्परेचर जल्दी। किससे पहले करे सर? का हु इज लूजिंग एंड हु इज गेनिंग? चलो बेटा जल्दी से बता। क्या हुआ? 50 डिग्री। वेरी गुड, 50 डिग्रीज इज द आंसर। आंसर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने जनों का आया? सेम है बेटा। हीट लॉस, Yes, sir. 50 degrees. हीट लॉस बाय होम बेटा? 100 grams of water must be equal to heat gained by whom? 240 gram of water, 240 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब इसका इक्वेशन लिख दो जल्दी से। तो ये हो गया 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 into this one is 80 minus of your T, and this one is equals to 600 into इसका स्पेसिफिक हीट है 0.1 into टेम्परेचर आ गया T minus of your 40 प्लस, और ये हो गया मेरे पास 240, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 into this one is T minus of your 40। मुनाम ऐसे वाले क्वेश्चंस करे आप मेटेरियल में से? जी सर। कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम्स करे ऐसे?
जी सर। वाटर मिक्सिंग करना है, कैलोरीमेट्री का मास यूज करना है, बेसिकली ऐसे वाले प्रॉब्लम्स है श्री चैतन्य के मेटल में। चलो इसका कैलकुलेशन कर लोगे ना बेटा? यस सर। करना है जी क्या? सर, है सर। सेम है ना प्रीवियस के सर का। तो टेम्परेचर आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सभी को, इज इट क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन ले लो बेटा। वी गॉट n number of liquids, n number of liquids of masses m comma 2m comma 3m comma 4m so on up to infinity, having specific heats s comma 2s comma 3s comma 4s comma so on, or at temperatures T comma 2T comma 3T comma 4T comma so on up to infinity, are mixed. First stop. The resultant temperature of mixture is चलो जल्दी से बताओ। आ गया? n number of liquids of masses m 2m 3m 4m having specific heat s 2s 3s and 4s are mixed at temperature T 2T 3T 4T so on up to infinity, are mixed. The resultant temperature will be equal to how much? आया? सिंपल है बेटा। देखो फर्स्ट मास, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट प्लस उसके बाद 2m इंटू स्पेसिफिक हीट कितना 2s प्लस नेक्स्ट वन इज 3m प्लस उसका स्पेसिफिक हीट कितना है 3s। वैसा बनते 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 सभी चीज एक कॉमन टेम्परेचर पे आ गए। मान के चलो T डैश, that must be equal to m into s into t plus this will be equal to how much for me 2m into 2s into your 2t। ठीक है ना बेटा? प्लस ये कितना हो जाएगा 3m into your 3s into your 3t plus so on up to infinity। ठीक है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। heat lost by one body must be equal to heat gained by another body, बस वही लिख रहा हूं मैं। Q is equal to ms into delta t common temperature। तो ये हो गया m into s plus 2 into 2 that will be equal to 4, ये हो गया 4 into your ms plus ये कितना बन जाएगा 3 into 3 3 9 into your ms, isn't it? और ये अब तो जाएगा infinity और ये हो गया some temperature T dash that is equals to ये कितना हो गया देखो ms into t। ठीक है, ms into t कितना बन रहा है देखो, T कॉमन है, ms into t कॉमन है, ms into t कॉमन है, isn't it? सो टेम्परेचर कितना है बेटा? फर्स्ट वन का टेम्परेचर कितना है T, नेक्स्ट वन टेम्परेचर कितना है 2T, तो T कॉमन है तो क्या बन रहा है देखो जल्दी से बताओ। फर्स्ट वन कितना आ गया
m into your s plus ये कितना बन जाएगा 2 into 2 that will be equal to how much for me 4 4 2 is 8 so this will be your 8 into your m into your s plus so on up to infinity जाएगा और इसमें t कॉमन रहेगा। आया सभी को ये मल्टीप्लीकेशन ही है बेटा। तो ये ms कैंसिल ये ms कैंसिल Yes, sir. ये ms कैंसिल ये ms कैंसिल ये भी ms कैंसिल गो ऑन कैंसिल होते जा रहा है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा तो इसको हो गया 1 ये हो गया 4 ये हो गया 9 प्लस ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है इनटू योर ये बन गया t डैश दैट इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा बेटा दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 1 प्लस ये बन जाएगा कितना 2 क्यूब प्लस ये बन जाएगा कितना 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी इनटू योर टेम्परेचर t बना। स्क्वायर ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स कितना बन जाएगा बेटा ये 1 प्लस ये कितना बन जाएगा 4 कैन बी रिटन एज ऑफ योर 2 स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर 3 स्क्वायर सो ये हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू योर t डैश इज इक्वल्स टू ये बन गया मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऑफ योर 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू योर t। तो मुझे t की वैल्यू निकालना है। सम ऑफ योर n नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स कितना है बेटा स्क्वायर ऑफ योर नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है n into n plus 1 into your 2n plus 1 divided by 6 आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे होंगे इसको दिस इज योर 2 डैश स्क्वायर ऑफ योर n नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रख लो 1 क्यूब का कितना है क्यूब ऑफ योर n नेचुरल नंबर्स अप टू n नंबर जब जाता है बेसिकली तो ये कितना बन जाएगा बेसिकली तो ये हो गया n into your n plus 1 n plus 1 this one is divided by 2 into your whole square and this one is your t so t dash निकालना है मेरे को t dash निकालो t dash is equals to तो ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर बेसिकली ये स्क्वायर है बेटा तो ये बन जाएगा मेरे पास n स्क्वायर into n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड by 4 into ये ऊपर चले जाएगा तो 6 हो गया ये वाला नीचे आ जाएगा दिस वन इज योर n into n plus 1 divided by 2n plus of your 1 कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पर दिस इज 2 3s दिस वन इज 2 2s तो सिंप्लीफाई कर लो कितना आ जा रहा t डैश इज इक्वल्स टू तो ये बनेगा 3 इंटू कुछ और करते हुए दिखाई दे रहा है देखो ये n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 है तो ये n और n प्लस 1 ये स्क्वायर ये घट जाएगा सो दिस वन इज 3 इंटू योर n प्लस 1 इंटू योर n divided by ये हो गया 2 into your 2n plus of your 1 so this is your answer for me so t dash is equals to I can write this one as 3n into your n plus 1 divided by 2 into your 2n plus of your 1 so this is your answer ये फॉर्मूला याद है नहीं है सभी को नेचुरल नंबर्स का याद नहीं है तो जल्दी से लिख लो एक बेसिक मैथमेटिक्स है इसके अंदर स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग इस चीज को चलो फर्स्ट वन देखो अगर मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू n है मान के चलो यानी समेशन ऑफ योर n नंबर जब होता है दैट इज इक्वल्स योर n into n plus 1 divided by 2 उसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू योर n स्क्वायर है समझो सो समेशन ऑफ दिस योर n स्क्वायर will be equal to इसका फॉर्मूला बनता है अपने पास n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 ये फॉर्मूला आप लोग को एज इट इज याद रखना है 1 क्यूब प्लस ऑफ योर 2 क्यूब प्लस ऑफ योर 3 क्यूब सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जा रहे हो अप टू योर n क्यूब यानी समेशन ऑफ योर n क्यूब का फॉर्मूला इज नथिंग बट ऑफ योर समेशन ऑफ योर n स्क्वायर समेशन ऑफ योर n आया ना वो n स्क्वायर आ रहा है बेसिकली तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है कितना देखो n into n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर ठीक है तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लो और लास्ट क्वेश्चन फिर से एक बार करने की कोशिश करो अगर नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो आई विल ट्राई टू हेल्प यू ठीक है चलो ठीक है बेटा आई एम लीविंग बाय बाय सर Okay.